Welcome back, bachcho. And before I start, I have a small complaint. So, whenever I'm making a geopolitical video, you guys are not just showing any interest towards it. I know कि OTA की stories बहुत ही ज़्यादा fun होती हैं सुनने में, बहुत ज़्यादा relatable लगती हैं, especially to the NCC cadets and everyone else who dreams of joining that place. But don't do that to me, okay? Please, I read a lot. I make such crisp notes because it will help you in understanding that. तो देखो, to reach that place you have to actually read what I'm trying to teach you, so please make sure कि उन videos पे भी थोड़ी सी अच्छे views आए, and do share in your study groups so that anybody who's struggling with geopolitics can understand these topics better. So a sincere request. So today I'm going to talk about 10 things. Okay, so I've written them down so that I should not forget it while मैं जब उस धारा में बह जाती हूँ, OTA वाली. So I've written it down so that I can exactly tell you what exactly I went through when I was in the academy and what did I learn from that 1 year of training, and how did that actually change me as a person, and which are the life lessons which are still with me from that 1 year of my life. So are you ready to start? Okay, let's begin. So number one is, you do not have to be the best at everything. What you just need is, you need to keep moving. That's it. Okay. So right now you might feel that you're not good in communication, you're not good in your GK, you're not good in current affairs, or maybe you are so bad in your public speaking, or maybe you do not get any ideas while you're doing your GTO. That's okay. That's okay. Remember this, that हर दिन में आपके पास 24 घंटे होते हैं, and from those 24 hours I want you to dedicate some time every single day to that weakness. So अगर आपको public speaking से problem है, I want you to take out just 5 minutes from those 24 hours and speak in front of mirror, or maybe record yourself in front of camera like this and speak. So this is one thing which academy taught us, कैसे हर कोई हर चीज़ में अच्छा नहीं होता है. कुछ बच्चे थे, दे वर सो गुड. आई मीन सम ऑफ द गर्ल्स, दे आर सो गुड इन स्टडीज़. वो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते थे. सम ऑफ देम वर सो गुड इन फिजिकल्स. आप देखो उनको कैसे, मतलब रेल की तरह भागते थे. सो दे वर सो गुड इन रनिंग. There were people who were so good when it comes to you know so many different things. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कोई एक लड़की थी हमारे साथ, one of our juniors. She used to play such fantastic basketball. I mean, oh my God. वो जैसे ही आप उसके हाथ में बॉल दोगे, वो बॉल सीधे आपको बास्केट में दिखती थी. She was actually an international player. So she has represented India at some level internationally in basketball. So what I'm trying to tell you is कि every person will have something. ठीक है, they might not be good at everything, but you will look at these people and you will learn from them, and that's how you will keep moving ahead in life. So that is rule number one, which I have learned, that I may not be best at everything I do, but the only thing I do is I just keep moving on. I keep on improving in myself. जैसे कि जब मैंने जियोपॉलिटिक्स पढ़ना शुरू किया था, ज़रूरी नहीं है. इनफैक्ट आपको पता है, मेरे एसएसबी के इंटरव्यू में मेरे से इंटरव्यूअर ने पूछा था, अनीता व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट, व्हाट इज़ योर वीकनेस. और मैंने उसे यही बोला था, सर आई एम नॉट वेरी गुड इन करंट अफेयर्स. मुझे करंट अफेयर्स नहीं आता है बहुत अच्छे से. एंड दिस इज़ व्हाट आई सेड. बट if you see me today, so I'm not the same person who I was in 2010. Why? Because I knew that it was one of the negative points which I have, that I'm not very good in current affairs. But I did not stop at that point कि मेरी selection हो गई तो बस मैं officer बन गई तो बस काम खत्म. No. As an officer also, I remembered that it's a weak point of me, and I kept on working on that weak point. And today I have okay geopolitical knowledge. Okay, so what I'm trying to tell you is, don't stop, just keep moving on whatever you're trying to improve. Number two is actually my favorite, which says that some days you will feel like that you cannot do this, okay, but you still have to show up. सो अच्छा, ये सबसे ज़्यादा कैसे होता है, जैसे कि मान लो रात को आपका बहुत बहुत ज़्यादा रगड़ा सेशन हुआ, जो कि होते हैं. अब अभी का मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरे कुछ कोर्समेट्स पोस्टेड थे OTA में अभी.
तो एज इंस्ट्रक्टर, सो दे वर टेलिंग मी कि अभी रगड़ा वगैरह बहुत कम हो गया है, सो आई डोंट नो। बट जब हम पोस्टेड थे तो क्या होता था कि रात को बहुत ज़्यादा रगड़े सेशंस होते थे, एंड वो बेसिकली इसलिए किए जाते हैं ताकि आप फिज़िकली थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो जाओ, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब आप रगड़ा सेशंस करके रात को सोते हो तो समटाइम्स यू डोंट गेट इनफ स्लीप, ठीक है। हो सकता है आपको 1-2 घंटा ही सोने को मिले, तो सुबह आपके अंदर उठने की हिम्मत नहीं होती है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हमारा रात को रगड़ा हुआ है, आज हम सोएंगे, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अप। सो दैट्स नॉट समथिंग विच यू कैन exactly say like that. So you still get up in the morning, you still show up for that prayer, the mustard prayer, which we do every single day, and then you are in the morning PT or drill ground, wherever you're supposed to reach, and then you move to your classes as well. So what I'm trying to tell you is that no matter how bad, how good, how pathetic you feel, you will end up showing at the next place. And this actually taught me a lot कि it doesn't matter how exactly you are feeling, okay? You just show up, ठीक है। So that show up reminds me कि आज हमने न्यूज़पेपर एनालिसिस नहीं किया है, but don't be angry on me. I will be covering all the articles on Monday. आज मेरे बच्चे दोनों इतना लड़े हैं. I mean, I was kind of losing my head whole day, and you know, they're the one who actually test my patience really good. So we'll not talk about that. Okay, so the point number 3 is that your mind gives up before your body. Okay, and this is an interesting one. So देखो, मैं एक कहानी सुनाती हूँ इसके पीछे। सो एक वहाँ पे रन होती है 40 किलोमीटर रन, ठीक है। तो ये 40 किलोमीटर रन जो होती है शाम को शुरू होती है, ठीक है। तो आप होती कब है पहले ये बता देती हूँ थोड़ा सा। देखो, ऐसी जो लंबी लंबी रन्स होती हैं ये होती हैं जब आप किसी कैंप के लिए जाते हो, ठीक है। सो आप कैंप के लिए गए हुए हो, वो कैंप ख़त्म हो गया आपका, एंड देन कैंप से आप शाम को एक लोकेशन पे, मान लो गाड़ी में आ जाते हो, गाड़ी से एक लोकेशन पे पहुंच जाते हो, एंड वहाँ पे बेसिक फर्स्ट एड लगा होता है और सब कुछ होगा वहाँ पे, खाने पीने का होगा, तो आप डिनर कर लेते हो, थोड़ा सा रेस्ट करते हो। इसमें यू हैव टू लाइक, इट्स अ बिग रक्सैक विच यू हैव टू पैक विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। कुछ आइटम्स के नंबर्स होते हैं विच आर सपोज टू कीप इन दैट। इट इज़ लाइक बैटल लोड मान लो आप, जो आपको लड़ाई में अपने साथ लेके जाना होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका वेपन भी होता है। तो ये सारा लोड, ये वेपन, ये आप सब कुछ रेडी कर लेते हो, एंड देन कंपनी वाइज गो होना शुरू होता है। तो ये शाम को स्टार्ट होता है अराउंड 7-8 o'clock के आसपास। आपके पीछे आपके रक्सैक पे रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, सो दैट कि द व्हीकल्स कैन एक्चुअली स्पॉट यू, सी यू, और आपका एक्सीडेंट ना हो या कुछ ऐसा ना हो। सो 40 किलोमीटर्स ना बच्चों, काफ़ी बड़ा डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो एज अ गर्ल जिसने जिसने नहीं इतना किलोमीटर, तो मैं, कोई नहीं करता यार। घर में आप बोलोगे कि आप 40 किलोमीटर भाग रहे हो तो बहुत ही एक्सेप्शनल बच्चे होंगे जो ये कर रहे होंगे। आई एम श्योर दे मस्ट बी 2 or 3 चिल्ड्रन ओनली हु विल बी डूइंग सच काइंड ऑफ फिजिकल्स। तो जैसे मैंने तो ऐसा कुछ इतना कोई खास फिजिकल नहीं किया था। हाँ, मैंने जबकि मैंने आरडीसी भी करा है, मैंने राजपथ में परेड भी करी, ड्रिल भी करा है, काफ़ी टफ ट्रेनिंग भी थी, सब कुछ करा है, बट थल सैनिक कैंप भी करा है। But this was different, you know. So that felt very difficult, and you feel like giving up. But there was a time in 40 किलोमीटर कि मेरे पास अपने कोस्टमेट्स की 2 राइफल्स थी, ठीक है, और मेरे पास अपनी भी राइफल थी। सो आई वॉज रनिंग विद 3 राइफल्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज ऐसा होता है कि अगर आपका कोस्टमेट ड्रॉप कर देता है, मतलब अगर आपका कोस्टमेट्स, मान लो कोई कोस्टमेट बेहोश हो गया या वो गिर गया, तो उसके आपकी कंपनी को -20 मिलते हैं, एंड इट्स अ कॉम्पिटिशन, रनिंग कॉम्पिटिशन होता है ये जो हो रहा होता है। सो बेसिकली आप खुद भाग रहे हो वो ठीक है, बट यू मेक श्योर कि आपके साथ वाले जो कोर्समेट्स हैं वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी को भी लूज़ करते हो, यू आर गोइंग टू गेट -20, एंड दैट यू डोंट वांट, ठीक है। सो आई रिमेंबर कि एक टाइम पे मैं 3 राइफल्स, एक बढ़िया सा रक्सैक और ये सारी चीज़ें लेके भाग रही थी। तो क्या मेरे माइंड ने कभी ऐसा सोचा था कि आई विल बी एबल टू हैंडल 3 राइफल्स इन वन गो विद द रक्सैक? नो, बट this is what you learn there, that if you tell your mind that you can do it, you actually can do it. Okay, so this is something which I learned there, that and जब हम लोगों ने 40 किलोमीटर ख़त्म करके जब हम बैरक में पहुँचे हैं सुबह, अच्छा सुबह हो जाती है, 4-5 बज जाते हैं, एंड वहाँ पे फिर आने के बाद सब कुछ काउंटिंग होती है, सारा आपका सामान चेक होता है A to Z, एंड जब ये सब कुछ हो गया तो मैंने जब अपने शूज़ खोले हैं, आई हैड दिस मच बिग ब्लिस्टर्स इन माई फीट, बट
आप नहीं रुक सकते हो, आप ख़त्म करते हो चीज़ों को, ठीक है? कई बार आपको ऐसा लगता है कि बस हो गई है, बट यू डोंट स्टॉप, ओके? सो दिस इज़ व्हाट अकेडमी टीचेस यू एक्चुअली, ओके? So the number fourth one is that small mistakes can teach you more than your big success. The only thing you actually need to do is you need to learn how to accept your mistakes. तो अच्छा, जितने बच्चे आप मुझे देख रहे हो, आप में से कोई ऐसा है जो बोल सकता है कि आज तक आप किसी चीज़ में फेल नहीं हुए हो, या फिर फॉर दैट मैटर आप बताओ मेरे को दैट हैव यू मेट एनी पर्सन इन योर लाइफ जो कि ये बोले कि भाई मैं तो आज तक फेल ही नहीं हुआ हूँ, तुम मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से किसी चीज़ में फेल नहीं हुआ हूँ, एंड आई हैव बीन अ विनर थ्रू आउट माई लाइफ. एंड इफ somebody says and talk like this, they are lying to you. You should know that they are lying to you. Okay, so do not believe any crap which people are trying to sell you. पहली चीज़. दूसरी चीज़, any time in life your failures are going to teach you much more than your success. सक्सेस जो है वो सीधे दिमाग में हिट करती है, ठीक है? बट जो फेलियर है ना, वो दिमाग में भी हिट करती है और दिल में भी हिट करती है, एंड इट फोर्सेस यू टू इम्प्रूव. जैसे कि मैंने अपना बताया था कि कैसे मैं स्क्रीन आउट होके आई थी, एंड देन इट फोर्स्ड मी सो मच टू वर्क ऑन माई सेल्फ, एंड दैट देन आई गॉट रिकमेंडेड इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट. सो वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट सक्सेस से बहुत ज़्यादा आपको फेलियर सिखाएगी बच्चों, और फेलियर से डरना नहीं है. फेलियर को हमने इतना हवा बना रखा है, मतलब in our society, but I don't feel कि failure is such a bad thing or such a big blunder, क्योंकि it actually teaches you. अब आप बच्चों को सोचो, जैसे कि I have kids है ना, तो अगर वो कोई गलती करके आते हैं तो मैं उनको बोलूँ कि नहीं तुम ये गलती करके कैसे ही आ गए, मतलब. सो वन डे माई डॉटर वॉज टेलिंग मी कि शी हैज़ अ फ्रेंड जो कि बता रही थी कि अगर उसके 20 में से 19.5 नंबर भी आते हैं तो उसकी मदर बोलती है ये 0.5 नंबर कहाँ कटे हैं. So she said कि mama, I felt so lucky that you never ask me or talk to me like that. You always tell me the way I can improve. So what I'm trying to tell you is, please learn from your failures, okay? Uh, and it is good to focus on your success, but learning from your failures is what is going to make you best version of yourself. So failure से डरना नहीं है बच्चों. It is actually an important thing in your life, and that is why you are facing them, and that is why you're going through them. And just take them in a positive way. The next lesson is that nobody actually cares about your excuses. वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते हो that I am on my periods, or that I don't feel like doing it, or maybe I had a breakup with my boyfriend, or maybe any damn excuse. So you have to show up at places. You will. So I remember there was a coursemate of mine जिसके parents का divorce चल रहा था. Okay, so the parents were going through divorce, and imagine what that coursemate would have gone through, right? But I mean, did she tell this to everyone? Nahi. Okay, and in fact, she was one of the finest, lady cadets I know. Such spick and span, बिल्कुल काम टाइम पे होगा, जहाँ पहुँचना होगा. She used to be on time. So no amount of excuse is going to save you. अभी भी in your this life also बच्चों, if you're a student, तो अगर आप ही अपने आप को excuse दे रहे हो कि आज weekend है, ये वाली movie देख लेता हूँ, आज weekend है, बाहर चला जाता हूँ, आज weekend है, coffee पी के आ जाती हूँ, 10 pictures click करके आ जाएंगे for Instagram. So if you are actually giving or hiding behind these excuses, I really want you to stop. I really want you to focus on the bigger goal which you have, rather than just hiding behind these excuses, because in the long run these excuses are not going to make you what you want to become. So please keep these excuses aside. हो सकता है कि आज ये आपको थोड़ा सा comfort space दे रहे हों, but in a long run they are not going to help you. You will not be able to reach the point you actually want to reach or you dream of reaching. So if you want to reach somewhere which no one around you has reached, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, and मेहनत से ना डरना नहीं है. Okay, so as I told you in my earlier videos also, that more than your intelligence, what's important is your consistency. और consistency का सबसे बड़ा दुश्मन होता है excuse. आज ये कर लेते हैं, आज छोड़ देते हैं, आज नहीं पढ़ते हैं, आज नहीं बोलता हूँ, आज नहीं वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करता हूँ, आज कम्युनिकेशन नहीं करता हूँ, आज ये नहीं करता हूँ.
just stop that excuses. No amount of excuses uh, is actually going to save you. Okay, so you can't do it, but you have to figure out the way to do it. You cannot keep on forcing or harping upon that I cannot do it. You cannot do it, that I know, but why? I mean, are you trying to find out the whys in your life that क्यों नहीं हो पा रहा है? And why you have said it to yourself कि नहीं हो पा रहा है तो it's okay. No, be action oriented बनो, ठीक है? Excuse oriented नहीं बनना है बच्चों. There's a difference between both of them. Okay. The next one is that you can learn to stay calm in difficult situations. ठीक है. It actually is not through a lot of difficult times. So I will tell you, एक हमारा कैंप था और हम इतने खुश कि भाई ये जो हमारे जल्लाद सीनियर्स हैं इनकी शक्ल देखने को नहीं मिले, को नहीं देखनी पड़ेगी हमें 7 दिन तक. हम इतने खुश, कोई हमें बजाएगा नहीं. अच्छा, बजाने का मतलब होता है कि रगड़ा, ठीक है. सो सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, बट दिस इज़ हाउ वी से इट इन द अकेडमी. तो हम इतने खुश कि कोई हमारा रगड़ा नहीं लेगा, कोई हमें पनिशमेंट्स नहीं देगा, कोई हमें कुछ बोलेगा नहीं, कोई ये नहीं बोलेगा व्हाई आर यू सिटिंग हियर, व्हाई आर यू वेयरिंग दिस, व्हाई आर यू डूइंग दिस. सो वी वर सो हैप्पी कि ओके दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर नेक्स्ट 7 days. और हम खुश होके पहुँचे कैंप में. अब कैंप में गए तो हमें लगा कि भाई कुछ तो होगा, कुछ तंबू, कुछ कनात, कुछ सोने के लिए कहीं तो. ऑल वी सॉ वॉज वन फ्लाई टेंट. फ्लाई टेंट क्या होता है? इट्स लाइक दिस एंड इसके नीचे 4 बोल लगे होते हैं. एंड इट वॉज रेनिंग हैविली एज इन लाइक टू गुड. मतलब वो पानी अंदर आ रहा था उस फ्लाई से, ठीक है. तो मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा देखना. अच्छा, माई किड्स हैज़ मेड द मॉन्स्टर. तो जब हम लोगों के पास कोई काम नहीं होता है तो वी मेक मॉन्स्टर्स, यू नो. सो दिस इज़ वन ऑफ द मॉन्स्टर्स दे हैव मेड एंड दे आस्क मी कि ममा इज़ दिस स्कैरी इनफ. सो अनदर वन इज़ दिस, यू नो. और भी है. सो दिस इज़ अ सी मॉन्स्टर. ओके, समझो बच्चों, देख लो. ओके, सो वो टेंट बेसिकली इट वॉज लाइक दिस, ठीक है. ये ऐसे ऐसे करके टेंट था एंड नीचे एक स्पेस है मान लो. अभी रात को जब हम सो रहे हैं वी आर लिटरली स्लीपिंग लाइक, थोड़ी फनी ड्राइंग होगी बट हंसना नहीं है, ठीक है. समझने की कोशिश करना है मैं क्या समझाना चाहती हूँ. हम लोग लिटरली ऐसे सो रहे थे, किसी के पैर यहाँ, किसी का मुंह यहाँ, किसी के हाथ यहाँ. मतलब इन द सेंस ये इंसान है ये जो ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं ना, सब ऐसे 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 गोल मोल होके और ऐसे हम एक दूसरे के आसपास. कोई ऐसे सो रहा है, कोई ऐसे सो रहा है कि किसी ने सर के ऊपर, किसी के पैर के ऊपर सर रखा हुआ है तकिया बना के, किसी ने कुछ करा हुआ है. एंड भाई रात को जब पानी गिरने लग जाता था थोड़ा सा उठ के खिसक जाते थे और फिर दूसरी जगह सो जाते थे. दैट वॉज वन, आई मीन, memory in itself, you know, that camp. I will never forget that camp my whole life. मतलब वो कैंप अपने आप में एक too good experience था, you know. So it actually teaches you that how, अभी आप अपना सड़ी हुई शक्ल बना लो, रो लो, कंप्लेन कर लो, बट एट द एंड यू हैव दैट कैंप ओनली. और आपके सारे इंस्ट्रक्टर्स जा चुके हैं, सिर्फ आपके वो 30-32 जो दोस्त जो हैं वो आपके साथ हैं, जो आपके कोर्समेट हैं. तो either you will find out a way to survive that night, okay, or you will keep complaining. कंप्लेन करोगे तो कितने घंटे करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा. उसके थक के तुम्हें भी सोना ही है, ठीक है. सो बेसिकली हाउ you find out the way to work in these difficult situations. Okay, so rather than getting aggressive or anything like that, you actually find out that how can I stay calm in these situations and how can I just let it pass. ठीक है. So वहाँ पे हम एक डायलॉग बोलते हैं, we say this dialogue all the time, this too shall pass. ठीक है. सो रिमेंबर दिस दैट दिस टू शैल पास. ठीक है. कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है बच्चों, दिस टू शैल पास. ठीक है. सो जस्ट कीप दिस इन योर हेड एंड जस्ट कीप मूविंग. ओके. नंबर 7th लेसन इज दैट डिसिप्लिन इजंट मोटिवेशन. ओके. डिसिप्लिन और मोटिवेशन को एक साथ नहीं जोड़ना है बच्चों. दोनों जो चीज़ें हैं वो बहुत अलग अलग चीज़ें हैं. ठीक है. हम जब मोटिवेटेड होते हैं तो हमें लगता है कि बस यू नो I will break the sky into pieces. But what do you do when you're not motivated?
That is what is discipline. That do you even show up when you don't feel like? That is what is discipline. And that is what academy teaches you, that no matter how pathetic your motivation is, no matter कि अगर आपने पिछले दिन एक टेस्ट फेल किया है, you will show up on the PT ground every single day. Okay? नो मैटर कल आपने स्विमिंग टेस्ट था और स्विमिंग टेस्ट आप फेल हो गए हो, तो अगले दिन क्लास है तो यू विल शो अप इन दैट क्लास ऑफ स्विमिंग. यू विल नॉट से कि मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया है क्योंकि कल मैं टेस्ट में स्विमिंग के फेल हो गया था. ठीक है, सो मोटिवेशन इज नॉट द टर्म देयर. The term in the academy is discipline. Okay, so you show up wherever you are being asked to, no matter how pathetic you feel in your body, in your mind, in your own head, in your heart. Okay, so we always give more importance to discipline, to sticking to the schedule rather than, just motivation. Okay, no foca motivation there. Lesson number 8 is that uh, you actually leave academy with a different relationship with yourself. ठीक है, तो you will be person X when you will reach there, and you will be person Z when you will pass out from that place. It actually teaches you so much, so much that I mean, this is थोड़ा सा क्या बोलते हैं ना उसे, ये सेंटिमेंटल है बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो जगह आपको बहुत सिखाती है बच्चों. बट अगर आप सीखना चाहते हो, नहीं भी चाहते हो तो भी सिखाएगी, सो सो दिस दैट प्लेस एक्चुअली टीचेज यू लॉट. क्योंकि इतना जो प्रेशर हम वहाँ पे हैंडल करते हैं ना, वो हम रियल लाइफ में कहीं और नहीं देखते हैं. एंड मुझे इसलिए लगता है कि देखो, इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू बी अ डिफेंस एस्पिरेंट ना, यू हैव एक्चुअली डन योर सेल्फ अ फेवर. वाई? बिकॉज जो आप अपना वर्जन अनलॉक कर रहे हो ना, वो वर्जन लोग 40 साल तक अनलॉक नहीं कर पाएंगे. द काइंड ऑफ things you are trying to learn, the kind of things you are focusing on, the kind of training you are doing for yourself at home also. मतलब maybe you are doing meditation, maybe you are doing workouts, maybe you are reading the newspaper every day. So जो चीज़ें आप कर रहे हो वो लोग 40 साल तक अचीव नहीं कर पाते. एंड दैट इज़ वॉट मेक्स अ डिफेंस एस्पिरेंट डिफरेंट. इवन इफ यू विल वर्क इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, आप अलग शाइन करोगे. आई प्रॉमिस यू दिस. ओके, कि यू विल बी टोटली डिफरेंट देन वॉट अदर्स विल बी, बिकॉज आपने एक अलग वर्जन अपना अनलॉक कर लिया है. और अगर आप वो लकी वंस में से हो, लकी एज इन डोंट गो ऑन दैट लक वाला लकी, लकी एज इन हु एक्चुअली वर्क्स हार्ड इन अ वे द फॉर्ज नीड्स इट. ठीक है, वो वाला लकी. फॉर्ज नीड्स इट एंड you actually crack everything in time and you reach that place, and then you unlock that version of yourself which you have not even dreamt in your dreams. Okay, so I mean, you will be a different person altogether. Your relationship with you just changes for whole life. You're not the same person. Okay, you're not the same person who reached academy. बोलते हैं ना, they bring out the gentleman from the boy, and they bring out the lady from the lady cadets. So it is actually because they will teach you so much. They will teach you how to survive, how to, just be the best even when the situations are like worst. Lesson number 9 is that how sometimes a simple bed, a hot tea are actually luxuries. So once you go to these camps where you are all in your mud and अच्छा, एक कैंप बताती हूँ आपको बच्चों, बहुत ही मज़ेदार कैंप है. तो एक कैंप था, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड लास्ट कैंप था ये शायद हमारा. हाँ, ऑफिसर्स बनने से पहले शायद सेकंड लास्ट कैंप था. उसमें क्या था, जो लोकेशन थी कैंप की, इट वाज समवेयर नियर एक छोटा सा ऐसे पानी का वाटर बॉडी वाज आल्सो देयर. ठीक है, तो उसमें हमें पता चल गया था कि हमारी बहुत ज़्यादा क्लास लगने वाली है, बहुत रगड़ा होने वाला है. ठीक है, तो हमें याद है सारी क्लासेस हो गई. अच्छा, वहाँ जाके भी क्लासेस होती हैं. ठीक है, वहाँ जाके भी पढ़ाई होती है टैक्टिस की एंड अदर सब्जेक्ट्स विच यू आर सपोज टू स्टडी. सो सारी क्लासेस हो गई 7 बजे के आसपास. फिर आते हैं हमारे डीएस, इंस्ट्रक्टर को डीएस बोलते हैं. ठीक है,
एंड देन दे टुक अस टू दैट वाटर पॉइंट, और वहाँ पे रोलिंग शुरू होती है, रोलिंग शुरू होती है। सो रोलिंग चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, और रोलिंग ऐसी मतलब वो आप पानी के अंदर कर रहे हो। तो जब आप रोलिंग करते हो तो कहीं कान में पानी घुस रहा है, जब रोलिंग कर रहे हो तो नाक में पानी घुस रहा है, सब सब जगह, कहाँ, हर जगह। तो इसलिए मैंने बोला था इन फ्यू ऑफ माई वीडियोज़ कि इसलिए वहाँ पे बाल कटवाना ज़रूरी है, बिकॉज आप बाल नहीं कटवाते हो तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस। बट देखो, दिस इज़ एन एक्सेप्शन फॉर सिख कैडेट्स, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड वॉज अ सिख, शी वॉज सिखनी, तो उसने नहीं कटवाए थे बाल, ठीक है। सो शी हैज़ हर ओन डिफ़िकल्टीज बट शी सर्वाइव्ड। सो आप ये सब मतलब ये चलता रहा। आई थिंक दिस ऑल वेंट ऑन टिल 2 o'clock इन दी मॉर्निंग, 2 AM तक वी वर डूइंग दिस ओनली, ठीक है। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। एंड पता है, मैं तो इतनी महान होती थी, मैं इन सिचुएशंस में भी हंस रही होती थी, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता था कि अच्छा, जब माँ आई वॉज इन 8th क्लास, तब मेरे फादर ने आर्मी छोड़ दी थी। तो वी शिफ्टेड इन सिविल एरिया, और वहाँ पे ना कोई ऐसे पार्क वाला जगह नहीं थी, कुछ पार्क्स वगैरह नहीं थे। तो मैंने बहुत मिस किया था प्लेइंग आउटसाइड, गोइंग आउट, रनिंग, ये सब मैं बहुत मिस करती थी, क्योंकि फ़ौज में ये सब बहुत मिलता था। तो मुझे तो ऐसा लगता था कि मुझे बस खुला खुला शेर टाइप छोड़ दिया गया है अभी फिर से मस्ती करने के लिए। तो आई यूज टू एंजॉय दिस कि चलो भाई रोलिंग करो, बच्चों की तरह, ये करो वो करो, ऐसे करके। एंड यार 2021 में 21 थी मैं व्हेन आई रीच्ड अकेडमी, मतलब मेरे को तो मज़ा आता था, एंड इट वाज अ ड्रीम लाइफ विच आई एक्चुअली ड्रीम्ड ऑफ। तो चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, 2 बजे जाकर के रारा खत्म होता है, और फिर हमारी डीएस हमें बोलती है द bathrooms are out of bound for you, you're not going to use the washrooms। एंड हम सबकी शक्ल ऐसे कि मतलब ये जो हमारी हालत हो रखी है, इस हालत में वेर आर वी सपोज टू गो। एंड देन यू थिंक हमने क्या किया होगा बच्चों। फिर हम लोगों ने बनाई, फिर डीएस चले गए, एंड हम लोग भी उस एरिया में चले गए जहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ था, ठीक है। तो चले गए वहाँ पे, और वहाँ जा कर के देख रहे हैं कि अब तो पानी वगैरह तो है नहीं, और बाथरूम जाने के लिए मना किया। बाथरूम वाला एरिया थोड़ा सा दूर था, ठीक है, और उसके पास ही डीएस के टेंट्स थे। तो ऐसा नहीं है कि हम वहाँ चले जाते और उनको पता नहीं चलता। तो जब एक बार बोल दिया आउट ऑफ बाउंड, इट मीन्स आउट ऑफ बाउंड, यू कैन नॉट गो, ठीक है। और अगर आप जाओगे तो फिर आपकी की क्लास लगेगी, ठीक है। सो हम रात को निकलते हैं 10-12 लड़कियाँ, ठीक है, टोली सी बना करके, एंड वी आर गोइंग खेतों के बीच में, घूम घूम के वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट सम, क्या होता है वो बोरवेल जो होते हैं खेत के अंदर। और फिर फाइनली वी फाउंड वन, ठीक है, हमें एक मिला। फिर हम लोग ने वहाँ पे नहाया, अपने कपड़े जो थे, कपड़े तो ले जाने लायक नहीं थे, कपड़े हमने लिटरली वहीं छोड़ दिए थे, ठीक है। और फिर हमने किसी तरह शावर लेके सब कुछ करके, एंड देन वी केम बैक। एंड कुछ बच्चे थे जो ऐसे अपने आप को गीले टॉवल से पोंछ पोंछ के ठीक हो गए थे, और जब हम वापस आए तो बोलते, ओ तुम नहा के भी आ गए। तो हमने बोला हाँ। फिर उन्होंने पूछा अच्छा कहाँ से नहा कर आए, फिर हमने उनको बताया कि वहाँ पे है बोरवेल, इफ़ यू वांट टू गो एंड हैव अ बाथ। तो क्योंकि इसके लिए भी हिम्मत चाहिए ना बच्चों की, 3 बजे आप नहाने जा रहे हो इतनी दूर। सो बट सी सच अ फन मेमोरी इट इज़, ओके। सो फिर जब ये कैंप्स हो जाते थे ना, और जब हम वापस आते थे, और जब हमें हमारा बेड एकदम साफ़ सुथरा मिलता था, और फिर हमें मिलता था चाय अपने मग में पीने को, आई मीन इट यूज्ड टू फील लाइक लग्जरी। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स बट दीज आर एक्चुअली द लग्जरीज ऑफ लाइफ विच यू माइट रियलाइज नाउ और विच यू माइट रियलाइज लेटर इन लाइफ। But remember this, that if you are staying at a home where you are being loved, ठीक है, where you have parents who supports you, where you have everything at your go, and फिर भी आप बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, you are just, you know, wasting those luxuries of life. So you better make it. Uh, and the 10th one is my favorite, which says that you make best memories from miserable times, okay. So that time might sound like miserable one, but let me tell you, it's actually not miserable at all. So till date, if you ask me best of the memories, so all the memories which I have from that place, ठीक है, they might look like or they might sound like कि कितना बुरा टाइम होता है, सीनियर्स ऐसे बात करते हैं, सीनियर्स इतना खतरनाक होंगे, या कुछ भी, या मतलब इतना रगड़ा हो रहा है, सोने को नहीं मिल रहा है, सुबह इतनी जल्दी उठ जा रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, that 1 year, all these days, they have made the best memories for me, for my life. I mean, the story which I can tell to my kids, the story which I go as a speaker and I talk at different schools, different
groups. So you will have so many stories to tell for your whole life. Okay, so a lot of you actually wanted to know how I was in my senior term, so I thought that okay, let me also talk about that. So one of the videos which I'm going to make will be about that. Actually, I'm trying to locate a diary in which a lot of my juniors have written about me and then they gifted that diary to me. बट आई मीन आई एम नॉट एबल टू लोकेट इट. इतनी जगह हम शिफ्ट करते हैं ना बग से उठा उठा के कि हमारा सामान पता नहीं कई बार कहाँ गायब हो जाता है. यू यू जस्ट कांट लोकेट इट. सो yes. See, today I was feeling a little dull because of all the trauma which I went through because मेरे बच्चों ने जो लड़ाई करी आज पूरा दिन. But I thought that कि नहीं, कल भी शाम को मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो I thought that no, I will do it today no matter how long it takes, no matter how much it takes. So here is the video of the 10 things which Academy taught me. And if you like this, do let me know in the comment section which was the favorite lesson of yours. आपका favorite lesson कौन सा है? And I will see you in the next video. Bye bye.